तो चलिए बेटा, वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू दी वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू दी मोड्स ऑफ द यूज ऑफ द ट्रांजिस्टर. ठीक है. नाउ द फर्स्ट मोड दैट आई हैव टेकन अप इज द कॉमन बेस मोड. नाउ इफ यू रिमेंबर, पिछले लेक्चर्स में मैंने कहा था कि जो आपका बेस है स्ट्रक्चर के एतबार से ये हमेशा कॉमन होगा बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर. फाइन. लेकिन when we talk about the electrical connections, your base may or may not be common. Fine. In this topic, we are taking up base as the common terminal between the collector and the emitter. Okay. Now, if you look at the circuit diagram, you'll see that I've used up a transistor. This is the transistor, of course, here. ठीक है. और अगर आप इसको डायरेक्टली डिटेक्ट करना चाहें तो ऑब्वियस सी बात, the arrow will let you know whether it is an NPN or a PNP transistor. Now, because the arrow is directed away from the transistor, it will be called as an NPN transistor. और NPN transistor के एतबार से this will be N. ठीक है. This will be P and this will be N. Fine. Okay. पहली चीज. दूसरी चीज जो आप देखेंगे कि जिस लाइन पे एरो होगा that will be the emitter. ठीक है. जो कनेक्शंस के एतबार से, जो स्ट्रक्चर के एतबार से कॉमन है, that will be the base. Fine. And जो inclined line बची हुई है that will be the collector. So this will be the emitter, this is the base and this is the collector. So we are talking about an NPN transistor. ठीक है. अब because I already told you NPN is preferred over the PNP due to the mobility reason. ठीक है. Now, in order to make this NPN very useful, I already told you the input must be forward biased, the output must be reverse bias. Now, यहाँ पे अगर आप देखें emitter base junction जो है, it has been already forward biased. ठीक है. We are applying a battery. See, this is VEB, the positive terminal of the battery, the negative terminal of the battery. Then we are using up another battery on the output junction. That will be VCB. ठीक है. The positive terminal here and the negative terminal here. ठीक है. जिस लेयर को आप कॉमन करेंगे, उस लेयर को आप हमेशा ग्राउंड करेंगे. ठीक है. This lets you know कि वो वाला लेयर जो है that is the common layer. Clear? Okay. Now, these two batteries are just providing the biasing, DC biasing जिसको हम कहते हैं, biasing, just letting you know which is the input side, which is the output side. लेकिन जो सिग्नल्स आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, they will be fed like this. Say for example, यहाँ से आपका इनपुट फीड होगा और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आप एक अपना आउटपुट जो है मेजर करेंगे. सो हियर यू विल हैव एन इनपुट वोल्टेज. ठीक है. इनपुट जो आप देंगे, इनपुट सिग्नल जिसको मैं कहूंगा, दैट सिग्नल व्हिच यू आर फीडिंग इनटू द ट्रांजिस्टर. ठीक है. लेकिन आपको आउटपुट में कुछ नई सिग्नल मिल जाएगी एंड दैट विल बी द आउटपुट सिग्नल व्हिच विल बी whose voltage will be measured across the load resistance. Clear? Okay. Now, if you look at this circuit diagram, you're seeing that your input voltage is between emitter and base, is VEB. ठीक है. Input voltage is through input side. Input में आपने जो voltage दिया है जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि ये forward biased है, that is between emitter and the base. And जो आपका input current है, input current वो कहां से? Input current जो है it is through emitter. ठीक है ना. और अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखा दूं तो शायद ऐसे, दिस इज IE. ठीक है. दिस इज द एमिटर करंट, यानी कि इनपुट करंट इज थ्रू द एमिटर. ठीक है. और अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं, V आउटपुट, तो वो कहां से है? शाबाश, इट इज VCB. नाउ समटाइम्स योर RL विल बी 0, तब VCB और जो VO है दैट विल बी सेम. ठीक है. आउटपुट करंट की अगर मैं बात करूं, आउटपुट करंट वो कहां से? शाबाश, इट इज थ्रू, आउटपुट करंट इज थ्रू द कलेक्टर, है ना. तो वो ऐसे आएगी आउटपुट करंट. दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन. ठीक है. ओके, दिस इज द आउटपुट करंट दैट इज थ्रू कलेक्टर. फाइन. नाउ, two things are very important while discussing the mode of the transistor. We discuss two things. जैसे हमने PN जंक्शन की बात की तो मैंने IV कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी. बिकॉज P और N एक ही डायोड लगा हुआ था तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने का मौका मिला और हमने कहा फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन. ठीक है कि नहीं. लेकिन अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें इस कॉमन बेस मोड में, ट्रांजिस्टर में दरअसल दो डायोड्स लगे होते हैं एंड दो डायोड्स, एक डायोड यहां पे है इनपुट साइड पे, एक डायोड आउटपुट साइड पे, और जो इनपुट वाला डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड,
जो आउटपुट वाला डायोड है दैट इज रिवर्स बायस्ड. देयरफॉर वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ द मोड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर. ठीक है, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अप दिस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है क्या? नाउ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज सिंपली अगेन द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ. ठीक है, of the input side IV graph of input side, but remember the condition when VCB, what is VCB? This is the output voltage, है कि नहीं? Output voltage. When VCB is constant, यानी कि you will find the input current changes. You will find that how does the input current vary with the input voltage when the output voltage is kept constant. For different values of VCB, you will try to plot a graph between input current and input voltage. Fine. Now, if you look at the graph, if you look at the circuit diagram again, you are seeing that input में एक डायोड लगा हुआ है. अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं आपके लिए, है क्या ये? It is PNP, या सॉरी NPN. So it is as if यहाँ पर आपका N लगा हुआ है, NP है, और यहाँ पे आपका PN लगा हुआ है. ठीक है, और this diode, this is D1, what is this? This is D2. We are trying to discuss the input characteristics. Therefore, we are trying to discuss the characteristics of the diode D1. Now, from the graph, from the circuit diagram, it is clear that D1 is forward biased. And forward biasing, now you already know the input characteristics. You already know the VI characteristics. What is that? शाबाश. आपको पता है that if you are plotting a graph between current, input current and input voltage, अब समझना है input current कहां से है? Input current emitter से है. Therefore it will be IE, and you know that in case of PN junction, अगर input current, अगर biasing forward biasing होगी तो आपकी current जो होगी it will be of the order of milliamperes. ठीक है, लेकिन जो आपका voltage होगा, input voltage, that is through VEB. ठीक है, and that will be measured in volts. फाइन है कि नहीं? ठीक है, therefore this graph, the graph will be somewhat like this. जैसे हमने PN junction का forward biasing का ग्राफ पढ़ा है, वैसा ही ग्राफ यहाँ पे भी आने वाला है, and the graph will be somewhat like this. शाबाश. पहले वोल्टेज बढ़ाते जाओ, लेकिन करंट्स पहले आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी जब तक वो नी वोल्टेज आ जाएगा, और नी वोल्टेज के आने के बाद शाबाश करंट्स एब्रप्टली इंक्रीज होगी. तो ग्राफ कुछ ऐसा था ना, याद अगर होगा, ऐसा था ना, ग्राफ कुछ ऐसा था ना. ठीक है, और मैंने कहा था एक वोल्टेज होता है जिसको हम नी वोल्टेज कहते हैं, करीब 0.7 वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन. ठीक है, क्योंकि हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, तो यहां पे हमने कहा था कि आपका जो नी वोल्टेज होगा करीब 0.7 वोल्ट होगा. क्यों? क्योंकि इस वोल्टेज के बाद आपका डिप्लीशन वेव कंप्लीटली खत्म हो जाता है, और आपके करंट्स, अब आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज जल्दी हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी करंट्स इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो देयरफॉर वी आर सीइंग दैट आपकी करंट्स और आपके वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ है, वो ग्राफ हमें ये कह रहा है कि आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, आपकी इनपुट करंट्स बढ़ जाएगी फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCB. से यहां पर हमने रखा था कि आपका जो VCB था एक कांस्टेंट वैल्यू पे था, से 1 वोल्ट में. ठीक है, 1 वोल्ट पे हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तब ग्राफ ऐसा. ठीक, नाउ दिस इज फाइन, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बट we want to check what is going to happen when VCB values are changed. What will be the effect on the input characteristics when we have different VCB values? यानी कि अभी हमने 1 वोल्ट रखा है, अब हम क्या करेंगे, हम एक और ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे जब हम VCB को से फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट रखेंगे, तब हम देखना चाहेंगे IB कैरेक्टरिस्टिक को क्या हो जाएगा. फिर हम 10 वोल्ट पे चले जाएंगे, फिर हम और देखना चाहेंगे कि आपका IB कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है उसको क्या हो जाएगा. ठीक है, now in order to understand this concept, in order to understand the concept of effect of VCB on the input characteristics, ठीक है, we need to understand one more concept which is called as early effect. क्या बोलते हैं उसको? Now this effect is called as early effect because it was given by James M. Early. And this effect is sometimes also called as base width modulation. क्या बोलते हैं? Base width
modulation. Fine. Now, what is this effect? How does it help you to understand this concept of the effect of VCB on the input characteristics? I'll try to make you understand. Fine. Okay. Now, in order to understand the concept of the VCB on the input characteristics, we would like to make we would like to take the help of the early effect or the base width modulation. Now, this base width modulation, as the word itself suggests, there is some variation of the base width. ठीक है, base width की modulation हो रही है. There is some variation of the base width when there is changing VCB. Whenever there is varying VCB, the width of the base width of base varies. ठीक है, इस इफेक्ट को हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन और अर्ली इफेक्ट कहते हैं. होता क्या है इस इफेक्ट में देख लीजिए. नाउ यू ऑलरेडी नो, अगर हम पी या एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, चलो एनपीएन की बात करते हैं. एनपीएन में हमने देखा कि आपका पी जो है स्लाइड होगा, आपका एन जो है एमिटर होगा, बेस होगा एंड देन फिर कलेक्टर होगा. ठीक है, दिस इज अगेन एन. ठीक, एमिटर बेस इज फॉरवर्ड बायस्ड. फाइन. देयरफॉर फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से जो डिप्लीशन विड्थ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी. लेकिन जो आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है, this is junction से junction 2, this junction has a depletion width already, but when you are reverse biasing this, जब आपने इसको reverse bias कर दिया, reverse bias करने का मतलब you have connected the positive terminal with the collector. ठीक है, this is VCB. ठीक है, जब आपने VCB reverse biased voltage इसमें लगा दिया तो होने वाला क्या है. हमने ये देखा बेस की विड्थ ऑलरेडी कम है. बेस की विड्थ कम होने का मतलब मैं ये कह सकता हूं, और हमने ये भी देखा कि बेस में जो डोपिंग लेवल है वो बहुत ही कम है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द रिलेशनशिप दैट विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग. ठीक है, अब डोपिंग लेवल बहुत कम है, इसका मतलब विड्थ बेस की क्या हो जाएगी, बहुत इंक्रीज. ठीक है, और अगर बेस की विड्थ बहुत इंक्रीज हो जाएगी, वो किस तरह से होगी वो हमें देखना है. अगर हम कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और बेस के साइड से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है दे आर द होल्स. ठीक है, अब रिवर्स बायस्ड कंडीशन में, अब से फॉर एग्जांपल ऑलरेडी आपका डिप्लीशन लेयर पहले इधर पे था. ठीक है, ये आपका डिप्लीशन लेयर था, लेकिन जब आपने रिवर्स बायस कर दिया, यू ऑलरेडी नो दैट द डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस. ठीक है, क्यों डिप्लीशन विड्थ इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि जो आपका कंटैक्ट पोटेंशियल है, जिसको हमने फिक्टिशियस बैटरी का नाम दिया था, फिक्टिशियस बैटरी और जो अप्लाइड वोल्टेज है, दे आर कंप्लीमेंटिंग, दे आर स्ट्रेंथनिंग ईच अदर. देयरफॉर आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ जाएगा. जब आपका पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो बेस की विड्थ है या ओवरऑल जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है, वो डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि पहले अगर यहां पे थी, अब इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन जो इंक्रीज होगा दैट विल नॉट बी इक्वल ऑन द बेस एंड द कलेक्टर साइड. ठीक, यू ऑलरेडी नो दैट विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग. अब डोपिंग के एतबार से बेस की डोपिंग कम है, और इसका मतलब विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बेस के साइड से ज्यादा होगा. देयरफॉर आपका जो नेगेटिव आयंस का लेयर होगा वो बेस के साइड से बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो पॉजिटिव आयंस का लेयर होगा ऑन द कलेक्टर साइड. ठीक है ना, मैं एक और बात दिखा रहा हूं, इसको आराम से समझ लीजिए. से फॉर एग्जांपल मैंने बेस और कलेक्टर की बात की, बेस पी टाइप है और आपका कलेक्टर जो है वो एन टाइप है. ठीक है, कलेक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स. बेस में क्या थे, होल्स. डिफ्यूजन हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर आ गया, दिस इज द ओरिजिनल डिप्लीशन लेयर. ठीक है, लेकिन जब मैंने रिवर्स बायस्ड वोल्टेज इंक्रीज कर दिया तो बेस की जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज होने का मतलब ये है कि डिप्लीशन लेयर, व्हाट वाज डिप्लीशन लेयर, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज स्पेस चार्ज रीजन. यानी कि इसमें क्या थे, इसमें इस वाले साइड से नेगेटिव आयंस थे. ठीक है ना, और इस वाले साइड से पॉजिटिव आयंस थे. फाइन.
लेकिन जब मैं रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कि जो नेगेटिव इमोबाइल आयंस ऑन दी बेस साइड है उनकी विड्थ बढ़ जाएगी और जो पॉजिटिव इमोबाइल आयंस ऑन दी कलेक्टर साइड है उनकी भी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। अब विड्थ इंक्रीज हो जाएगी लेकिन अनइक्वली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग एंड डोपिंग बेस के साइड से कम है। जब कम है तो विड्थ ज्यादा होगी। इसका मतलब आपका जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है on the base side that will be more as compared to the width of the depletion layer on the collector side. Clear? ठीक है ना? तो यहां से लेकर यहां तक आपका कलेक्टर वाला रीजन होगा और लेकिन बेस वाला रीजन जो है वो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, वो इससे ज्यादा होगा, ये वाला होगा। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ आपके लिए फॉर एग्जांपल ओवरऑल विड्थ मैं मानता हूं ओवरऑल विड्थ बेस की WB थी, दिस वाज द ओवरऑल विड्थ। ठीक है, और आफ्टर दिस रिवर्स बायस वोल्टेज जो आपका डिप्लीशन विड्थ है वो तो बढ़ गया। बढ़ने का मतलब लेट दैट विड्थ बी W। ठीक है, W। देयरफॉर जो विड्थ अवेलेबल है अब रिकॉम्बिनेशन के लिए उस विड्थ को मैं W इफेक्टिव बोल रहा हूं या W डैश बोल रहा हूं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल विड्थ WB वो किसके बराबर है? WB overall width of the base that is equal to this overall width of the base this is also called as metallurgical width। क्या बोलते हैं इसको? metallurgical width। ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन जब हमने की तो विड्थ की इतनी बेस की इतनी विड्थ थी, लेकिन जब हमने रिवर्स बायस कंडीशन लगा दी तो आप देख रहे हो ओवरऑल डिप्लीशन विड्थ W है और जो रीजन अभी डिप्लीट नहीं हुआ है जिसमें रिकॉम्बिनेशन अभी भी हो सकती है उसको मैं W डैश बोल रहा हूं। Therefore, overall metallurgical width किसके बराबर है? It is equal to W plus W dash, where W dash is the effective width of the base। ठीक, और if therefore we can say that W dash, the effective width of the base, it is equal to WB minus W। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ जब आपका VCB इंक्रीज होता है, when VCB increases, ठीक, VCB इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? शाबाश, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होता है। डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होने का मतलब W इंक्रीज हो जाएगा और जब W इंक्रीज हो जाएगा, W भी तो कांस्टेंट है, तो आप मानते हैं कि W डैश डिक्रीज हो जाएगा। W डैश डिक्रीज होने का मतलब वो वाली विड्थ जिसमें डिप्लीशन नहीं हुई थी, वो वाली विड्थ जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो सकता था, वो विड्थ कम हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स n टाइप से बेस की तरफ डिफ्यूज हो रहे थे वो तो इसको डिफ्यूज कर रहे, वो तो इसकी रिकॉम्बिनेशन कर रहे थे ना, लेकिन अब रिकॉम्बिनेशन की विड्थ पहले इतनी थी, अब वो रिकॉम्बिनेशन की विड्थ सुकड़ दी गई और वो अब W डैश आ गई और आहिस्ता आहिस्ता जब आप VCB बढ़ाओगे W डैश कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा और जब वो कम होता जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं जब W डैश डिक्रीज हो गया मैं कह सकता हूं रिकॉम्बिनेशन वाली विड्थ इट एक्चुअली डिक्रीजेस। रिकॉम्बिनेशन विड्थ डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो रहे थे फ्रॉम N टू P और यहां पर रिकॉम्बिनेशन कर रहे थे, अब विड्थ बहुत कम है। विड्थ बहुत कम होने का मतलब उनको उतना चांस नहीं मिलेगा रिकॉम्बिनेशन के लिए। देयरफॉर मैं ये कह रहा हूं रिकॉम्बिनेशन चांस डिक्रीजेस, रिकॉम्बिनेशन चांस डिक्रीजेस। ठीक, अब जब रिकॉम्बिनेशन चांस डिक्रीज हो गया इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो N साइड पे थे वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएंगे इनटू द कलेक्टर, वो कलेक्टर में आ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा? विच इंप्लाइज मैं ये कह सकता हूं कि कलेक्टर करंट जो आपकी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? ठीक, एक और चीज भी हो रहा है। यू ऑलरेडी नो देयर एग्जिस्ट्स अ पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन E एंड B। यहां पे होल्स बहुत ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर आप देखें, व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? इट इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट विड्थ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ, अगर मैं बेस की बात करूं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पर यूनिट विड्थ। व्हाट इज द विड्थ? अवेलेबल होल्स किसमें है? W डैश में, बाय W डैश। ठीक है, आप समझ लीजिए जब आपने VCB इंक्रीज किया W इंक्रीज हुआ, W इंक्रीज हुआ तो W डैश डिक्रीज हुआ। W डैश जब डिक्रीज होगा, दिस इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट G। W डैश जब डिक्रीज हो रहा है तो G क्या हो जाएगा? इंक्रीज। शाबाश।
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे थे फ्रॉम एमिटर टू बेस, उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होगा। उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होने का मतलब number of electrons per unit time is increasing. Therefore I can say that emitter current is actually increasing. Emitter current is increasing. Therefore emitter current जब increase हो जाएगी तो आप इस चीज को समझ लीजिए, जब आपका emitter current increase होगा तो क्या आप मानते हैं कि जो आपकी resistance offer कर रहा है on the input side, that input resistance will be less. होगी कि नहीं? शाबाश, which implies मैं कह रहा हूं resistance on the input side will decrease. ठीक है, now I again go to the input characteristic. मैंने कहा था input characteristic को और दिखा रहा हूं. input characteristic कुछ ऐसे थी. This was the current, emitter current in milliamperes. This was the collector and base. This was the VEB. ठीक है, at constant VCB. ठीक है ना, एंड ग्राफ हमने कहा कुछ ऐसा है. ठीक है, at 1 volts ये ग्राफ आ गया था. हमने यहां पर नी वोल्टेज की बात की. ठीक है ना, नी वोल्टेज की बात की. अब समझना, IV कैरेक्टरिस्टिक से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, और अगर हम इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें, स्लोप विल बी I by V, लेकिन रेजिस्टेंस होता है V by I. ठीक है, therefore मैं कह सकता हूं स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. यानी कि अगर आपका स्लोप बहुत ज्यादा होगा तो आपकी रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी लेस. ठीक, और अगर आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी मोर, आपका स्लोप कम होगा. ठीक है ना, तो यहां पे आप समझ लीजिए, हमने अभी कहा एमिटर करंट इंक्रीज हो रहा है. एमिटर करंट इंक्रीज होने का मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है. और अगर आप यहां ग्राफ को देखें, VI ग्राफ अगर होता तो रेजिस्टेंस आ जाता, लेकिन IV ग्राफ से जो स्लोप देगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस. अब चूंकि रेजिस्टेंस घट रही है, जब रेजिस्टेंस घट रही है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी मोर. स्लोप ज्यादा होने का मतलब स्टीपनेस ज्यादा होगी कि नहीं? देयरफॉर व्हाट यू आर सीइंग, आप देख रहे हो जब आपका वोल्टेज VCB बढ़ जाएगा, आप में आपकी एमिटर करंट इंक्रीज हो जाएगी और उसमें ज्यादा स्टीपनेस होगी. ज्यादा स्टीपनेस होने का मतलब करंट तो पहले इंक्रीज हो रही थी ऐसे 1 अगर मैं यहां की तरफ भी बढ़ रही है, लेकिन यहां से स्लोप जो है वो कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो करंट जो है उसको सही बढ़ाने का तरीका ये कि आप उसको पहले ही बढ़ा दें 5 वोल्ट पे. अगर आप इसको 10 वोल्ट करेंगे तो उससे पहले बढ़ा दें 10 वोल्ट पे. तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो वोल्टेज बढ़ाने से पहले 1 वोल्ट था VCB, फिर 5 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट. वोल्टेज बढ़ाने से, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने से आप देख रहे हो करंट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन पहले ही इंक्रीज हो रही है. इस पहले ही इंक्रीज ऑफ द करंट को हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? एंड देयरफॉर वी आर सीइंग दैट आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर चेंजिंग VCBs कुछ ऐसी आ जाती है. क्लियर? दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द अर्ली इफेक्ट. ठीक है ना? ओके, नाउ ओवरऑल वी डिफाइन समथिंग एज input dynamic resistance. ठीक है. Now when we define this input dynamic resistance, it is defined as or RI, it is defined as the change in the input voltage, that is VEB. ठीक है ना, divided by the change in input current, that is IE, when शाबाश VCB is constant. ठीक है ना? क्लियर? तो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस ये होता है. नाउ सी, समझना मेरी बात को, आपके स्लोप के एतबार से जब आपका रेजिस्टेंस VCB बढ़ाने से जब आपका VCB बढ़ रहा है तो आपका स्लोप, शाबाश, आपका स्लोप जो है वो बढ़ रहा है. स्लोप बढ़ने का मतलब आपकी करंट्स बढ़ रही, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज लेस. देयरफॉर व्हेन यू हैव मोर वैल्यूज ऑफ VCB, आपने जितना VCB को बढ़ाया आपकी करंट्स बहुत ज्यादा होगी. करंट्स बहुत ज्यादा होगी तो आपकी रेजिस्टेंस ऑफर क्या हो जाएगी? कम. तो रेजिस्टेंस कम हो गया ऑफर. देयरफॉर रिमेंबर, इन केस ऑफ इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस द टिपिकल वैल्यूज रेंज बिटवीन 20 to 100 ohms. ठीक है कि नहीं? इट इज फ्रॉम 20 to 100 ohms. तक वजह इज युथीचे VCB बढ़ूत, करंट चेन गछ इंक्रीज, स्लोप चेन गछ इंक्रीज, रेजिस्टेंस ऑफर क्या गछ कम.
एंड इफेक्टिवली हमने ये देखा कि इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, इट वेरीज फ्रॉम 20 to 100 ohms. Clear है? This is the overall concept of the input characteristics of the common base mode. ठीक? Now I'll move on to the next topic, that will be the output characteristic of the common base mode. Okay, now we'll go on and we'll take up the second part, that is the output characteristic of the common base mode. Output characteristics of common base mode. Now, again यहाँ पे हमें यही समझना है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो आउटपुट जंक्शन है, जो डायोड नंबर D2 था उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता कि अगर मैं यहाँ पे अगेन एनपीएन की बात हम कर रहे थे, अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ नए से बना दूं तो कुछ ऐसा है, एन पी और एन, ठीक है। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है D1 जिसको हमने बोला, और यहाँ पर भी एक डायोड लगा हुआ है जिसको हमने D2 बोला, ठीक है ना। और हम ये कह रहे हैं कि जो आपका ये वाला साइड है D1, दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड, लेकिन जो D2 है दिस मस्ट बी रिवर्स बायस्ड सो दैट योर ट्रांजिस्टर वर्क्स इन एक्टिव स्टेट, ठीक है। अब एक्टिव स्टेट में जब हम इसको रिवर्स बायस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो डायोड नंबर T2 होगा, वी हैव टू एक्चुअली स्टडी इट्स रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देयरफॉर आई कैन से दैट, यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो हमने वोल्टेज दे दिया था दैट वाज V नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वाज VEB, ठीक है। एमिटर है, बेस है, कलेक्टर, और जो यहाँ पे हम वोल्टेज दे रहे हैं दैट इज कलेक्टर में हम पॉजिटिव देना है और ये नेगेटिव, दिस इज VCB, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, क्लियर। समझ लीजिएगा कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इट विल बी अगेन एन IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, बट बिटवीन, शाबाश, पिछले वाले केस में मैं रिपीट कर रहा हूं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में शाबाश हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन इनपुट करंट वाज थ्रू एमिटर एंड इनपुट वोल्टेज व्हिच वाज VEB, और हमने इस वक्त कांस्टेंट किया था VCB को हमने रखा था कांस्टेंट, यानी कि हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट किया, ठीक। लेकिन दिस वाज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द CBM, रिमेंबर इट इज अ ग्राफ बिटवीन the output current, obviously that is the collector current, ठीक है, the collector current and the output voltage is VCB, ठीक है ना। at हमें होना चाहिए था उस एतबार से it should have been at constant VEB, ठीक, लेकिन it is not at constant VEB, rather it is a graph between IC and VCB at constant IE, when IE is kept constant। उसकी वजह क्या है? हमें रखना था VEB कांस्टेंट, लेकिन हम किसको कांस्टेंट कर रहे हैं? IE को। उसकी वजह ये कि हमने अभी देखा कि जो आपकी एमिटर की करंट दैट इज एक्चुअली चेंजिंग बाय द चेंज इन VCB, दैट इज आल्सो चेंजिंग बाय द चेंज इन VEB, क्योंकि हमने ग्राफ अभी देखा, वही वाला ग्राफ हमने देखा, ग्राफ ऐसे था, योर VEB इज चेंजिंग, योर IE इज चेंजिंग, एंड व्हेन योर VCB वाज इंक्रीजिंग द करंट्स वर अगेन इंक्रीजिंग। Therefore, IE is actually dependent on VCB as well as VEB. And in order to keep this thing constant, अगर हम एक को constant करें तो ये तो फिर भी change होगा ना। Therefore, हम इस चीज को constant कर रहे हैं and इन चीजों के बारे में हम ध्यान नहीं दे रहे। This is the reason that your transistors are sometimes also called as current controlled devices. They are not called as voltage controlled devices because the output characteristic is controlled by input current. अब IE कंट्रोल करेगा आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को। क्यों? मैं IE को इसलिए कांस्टेंट कर रहा हूं क्योंकि आपका VEB, क्योंकि आपका VCB दोनों IE को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। देयरफॉर हम IE को कांस्टेंट करेंगे और IE का इफेक्ट फिर देखेंगे ओवरऑल IC पे। क्लियर है कि नहीं? देयरफॉर रिमेंबर इन केस ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव अ ग्राफ बिटवीन IC एंड VCB एट कांस्टेंट IE, ठीक है ना। IE इसलिए बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन VCB एज वेल एज VEB, एंड अगर हमने VEB को कांस्टेंट किया होता IC would have still changed, IE would have still changed because it depends on VCB as well. Clear? Okay. Now, when you look at the graph, when you want to plot a graph between these things, तो हम ये देखेंगे, we already have a relationship that you already know that
रिलेशन पढ़ी दैट जो कलेक्टर करंट होता है, कलेक्टर करंट, हमने रिवर्स लीकेज करंट्स का कांसेप्ट पढ़ा था। मैंने आपका आईसी जो होता है इट इज एक्चुअली इक्वल टू अल्फा आई प्लस ICO पढ़ा ना हमने। कहने का मतलब क्या था मैं दिखा रहा हूं। से फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रांजिस्टर है, मैंने आपको कहा कि अगर आपका दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि अगर आप बेस को रिवर्स बायस करना चाहते हैं, दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से करंट्स ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, लीकेज करंट जिनको हमने कहा। और मैंने कहा कि लीकेज करंट्स तब भी फ्लो करती है जब आपके इनपुट में कोई भी करंट नहीं होगी, यानी कि आपने IE जो है आपका IE जो है आपका सॉरी IE जो है आपका IE वो हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर हम IE जीरो कर रहे हैं आपका करंट तब भी लीकेज करंट होगा, यानी कि आपका ICO तब भी होगा, क्लियर है ना। Therefore remember जो नेट कलेक्टर करंट है इट डिपेंड्स ऑन IE as well as the leakage currents। हमने पहले ही कहा था this is of the order of microamperes, this is of the order of milliamperes, ठीक है ना। तो हम डिफरेंट केसेस लेते हैं IE के और हम will try to plot a graph between for IC, ठीक है। अच्छा यहां पे देख लीजिए, जब आपका IE जीरो है यानी कि कोई भी करंट एमिटर में इनपुट करंट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि आपका इनपुट जो है इट इज एन ओपन सर्किट एलिमेंट, ठीक है। जब आपका ओपन सर्किट एलिमेंट इनपुट में लगा हुआ है तो आप मान रहे हैं IE तब कितना है, IE तब जीरो। जब IE जीरो है तो आपका IC किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ICO, इट इज द कलेक्टर करंट व्हेन द फर्स्ट जंक्शन इज ओपन, ठीक है कि नहीं। इसीलिए मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी ये बात की थी ICO का मतलब क्या है, ठीक है, वो प्लीज रिवाइज कीजिएगा तब आपको ये समझ आ सकता है। तो यहां पे IC इज इक्वल टू शाबाश ICO, इसका मतलब आपने ICO का वैल्यू कुछ भी रखा हो ना, ICO इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन समझते हो ना, क्यों, क्योंकि आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फिक्स नंबर में होते हैं, जब उनका कांस्टेंट नंबर फ्लो करेगा you have leakage currents or reverse saturation currents। therefore I can say that when your IE is equal to zero, when your IE is equal to, you'll have reverse saturation currents, and those currents only depend on VCB, जो आपने यहां पे वोल्टेज दे दिया VCB, ठीक है कि नहीं। अब जितना VCB को बढ़ाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता उतने ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होंगे और जब तक इनका नंबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एंड देयरफॉर द ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस, पहले बढ़ रहे हैं फिर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है कि नहीं। Now this region that you are obtaining is called as cut off region। इस रीजन को हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। एंड कट ऑफ रीजन में आपका जो ट्रांजिस्टर है इट बिहेव्स एज अ स्विच ऑफ कंडीशन, ठीक है, ये बंद रहेगा, ठीक है। तो कट ऑफ रीजन होता है। अब ये करंट जो है देयर एक्चुअली IE is zero, your IC will be of the order of microamperes, ठीक है कि नहीं। हाँ, although the graph is between IC in milliamperes and VCB in volts, ठीक है। अच्छा, now if you are increasing IE, if your IE increases, ठीक है, IE already milliamperes में, तो उसके मुकाबले में जो आपका ICO है it is in microamperes, and you can neglect that concept of microamperes, or you can say that IC जो है it is equal to alpha IE। therefore alpha हमने पढ़ा है, alpha का वैल्यू करीब शाबाश 95 to 98% होता है। therefore I can say that IC is a nearly equivalent to IE, although IC will actually be slightly less, ठीक है ना, थोड़ा कम होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि nearly equivalent to IE, ठीक है, यानी कि IC it only depends on IE, it is immaterial of VCB, ठीक है। VCB को आप कितना भी बढ़ा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना IC पे, इस पे सिर्फ और सिर्फ एमिटर करंट का फर्क, यानी कि एमिटर करंट इज द इनपुट साइड। अभी इनपुट साइड हमने रखा था ओपन सर्किट, लेकिन जब हमने इनपुट में वोल्टेज दे दिया तो एमिटर करंट इंक्रीज होने लगेगी। एमिटर करंट जब इंक्रीज होने लगेगी आपका से 2 एम्पीयर आ गया, 4 एम्पीयर आ गया, 5 एम्पीयर आ गया, तो आपका कलेक्टर करंट करीब वही होगा, 2 एम्पीयर होगा, 4 एम्पीयर होगा, 6 एम्पीयर होगा, लेकिन हाँ बराबर नहीं होगा, स्लाइटली थोड़ा सा कम होगा।
Therefore, the graph will be somewhat like this. When your emitter current say is 1 amperes, 1 milliampere जब होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा emitter current milliamperes में होता है, ठीक? तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर आपका emitter current से फॉर एग्जांपल 2 milliampere होगा, तो वो ग्राफ कैसे? अगेन स्ट्रेट लाइन। This region shows that it is immaterial of VCB, and you are having currents which are constant currents which only depend on the currents of the input side, ठीक है कि नहीं? And this region is called as active region। यही वो रीजन है जिस रीजन में आपका ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना? सो रिमेंबर, मैंने एम्पलीफिकेशन का कंसेप्ट आपको थोड़ा दे दिया था, अभी आपको समझ आ जाए, ठीक? सो एक्टिव रीजन वो वाला रीजन जब आपका कलेक्टर करंट होली एंड सोली इट ओनली डिपेंड्स ऑन आई। एक्चुअली थोड़ा ग्राफ थोड़ा इससे कम भी होगा, लेकिन it will be again a straight line, and therefore I am showing it nearly equivalent to the same thing, ठीक? Now समझ लीजिए, एक्चुअल में आपका एक्चुअल करंट ऐसे था, ठीक है, और यहां से आपका करंट ऐसे था, ठीक है, और यहां से आपका करंट ऐसे था, ठीक है। दिस वाज IC, दिस वाज IE एंड दिस वाज IB, ठीक है ना? नाउ इफ योर diode D2 was actually reverse biased, was it? Yes. Now if you are forward biasing it, यानी कि फॉरवर्ड बायस करने का मतलब यू आर गोइंग फॉर अ नेगेटिव वोल्टेज ऑफ VCB, यानी कि आप देखो ये समझ लीजिए, VCB यहां पे क्या है? 0। VCB जब बढ़ेगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ेंगे, ठीक? लेकिन अगर आपने अब VCB को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने का मतलब अभी तक यहां पे था पॉजिटिव टर्मिनल, था कि नहीं? लेकिन अब यहां पे क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। जब ये नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा तो आप देखोगे ये दोनों डायोड जो है ये क्या हो जाएंगे? दोनों फॉरवर्ड बायस्ड। और जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, आप समझ लीजिए मेरी बात, हमें कंसेप्ट मिल जाएगा दैट योर करंट्स, एमिटर करंट्स विल शार्पली डिक्रीज। क्यों? क्योंकि करंट्स नाउ विल बी ड्रॉन लाइक दिस। ऐसे देख लीजिए आप, जब इस बैटरी को रिवर्स किया जाएगा तो ये बन जाएगा आपको पॉजिटिव टर्मिनल, ये बन जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? अब जो करंट्स अभी तक ऐसे जा रही थी, अब वो कैसे जा रही है? ऐसे। जब वो करंट्स ऐसे जाएगी तो आपका एमिटर करंट शार्पली क्या हो जाता है? डिक्रीज। रिमेंबर व्हेन VCB is reversed, जो आपका एमिटर करंट है इट विल शार्पली डिक्रीज, और शार्प डिक्रीज होने की वजह से आपकी करंट्स कुछ ऐसे आ जाती है, ये देख लीजिए, ठीक है? अगर यहां पे कुछ होता ये आ जाता, ठीक है? और इस रीजन में, जिस रीजन में ये चीज हो रही है दैट योर emitter currents are sharply decreasing, this region is called as saturation region। क्या बोलते हैं इसको? सो सैचुरेशन रीजन तब होगा जब आपके दोनों डायोड्स क्या होंगे? फॉरवर्ड बायस्ड होंगे, एंड इस रीजन में आपका जो सर्किट है इट बिहेव्स एज स्विच ऑन कंडीशन, ठीक है? समझ गए कि नहीं? ओके। नाउ ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लाइन व्हिच इज VCB equal to 0, VCB equal to 0, क्योंकि VCB इसके बाद इंक्रीज हो रहा है। Now this line acts as a border line between active region and saturation region. So therefore remember, it acts as a border line between active region and saturation region, ठीक है कि नहीं? इसी तरह से अगर आप ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन, इस लाइन पे IC 0 है कि नहीं? इस लाइन पे IC 0 है, तो VCB was 0 वो ये वाली लाइन, लेकिन दूसरी लाइन भी है जब IC आपका 0 है, ये वाला। This line acts as a border line between शाबाश active region and cut off region, ठीक है कि नहीं? अब क्यों सर ये तो ऊपर ही है, लेकिन बच्चा रिमेंबर दिस इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन माइक्रो एम्पियर्स में होता है, ये मिली एम्पियर्स में है, तो माइक्रो और मिली उनको सैचुरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए जो लाइन है दैट इज IC इक्वल टू 0। क्लियर? समझ गए कि नहीं? ओके, दिस वाज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द common base mode. Clear? Now the last thing that we are left with is the output dynamic resistance. Now it will be output dynamic resistance की अगर मैं बात करूं, it will be RO किसके बराबर होगा?
It will be defined as the change in output voltage. Output voltage कहां से है? VCB से है. Divided by change in current. Output current वो कौन सी है? Collector current. मगर कांस्टेंट क्या रखा है? आपने एमिटर करंट को कांस्टेंट रखा है. ठीक है. अब देख लीजिए ग्राफ को. ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप अगेन यहां पे स्लोप जो होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. होगा कि नहीं? क्योंकि ये ग्राफ जो है आईवी ग्राफ है. अगर वी आई होता तो रेजिस्टेंस दे देता, लेकिन ये आईवी ग्राफ है तो इनवर्स ऑफ द स्लोप विल गिव यू द रेजिस्टेंस. नाउ अगर ये ग्राफ्स को देखें तो ग्राफ जो है बड़े फ्लैट है. फ्लैट होने का मतलब स्लोप जो है इज वेरी स्मॉल. ठीक है. जब स्लोप बहुत कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस, जब ये बहुत कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत. यस, रिमेंबर रेजिस्टेंस जो है इट विल बी ह्यूज. And this is due to this reason that common base mode in its output side it has a resistance of करीब 1 mega ohm. ठीक है कि नहीं? इनपुट में रेजिस्टेंस बहुत कम था, उसकी वजह ये थी स्लोप बहुत ज्यादा थी. स्लोप ज्यादा थी, रेजिस्टेंस कम थी. रेजिस्टेंस 20 to 100 ohm थी. लेकिन यहां पे स्लोप बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी एंड द रेजिस्टेंस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 mega ohm. क्लियर? ओके. Now in active state I already told you that आपका जो ट्रांजिस्टर है it can be used as an amplifier. ठीक है. Amplification factor, we define amplification. You already know that IC it is equal to शाबाश alpha IE plus ICO. ठीक है. लेकिन एक्टिव मोड में मैंने आपको कहा you can neglect this term because this is the currents of the order of microamperes. ये microampere currents होती है. Therefore you can neglect them and therefore we can say that IC it is equal to alpha IE, and जिसकी वजह से we define alpha as IC upon IE. ठीक है. And this alpha is called as current gain. क्या बोलते हैं इसको? In case of common base mode, this is alpha. And you already know that alpha का value it is करीब 0.95 to 0.98. Therefore, instead of amplifying the current in the output, this is the output current. What is emitter current? This is the input current. This is actually output current by input current. Instead, अगर अल्फा 1 से ज्यादा होता तो मैं ये कहता कि आपका इनपुट का आउटपुट का करंट जो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देख रहे हो it is nearly equivalent to 1. Nearly equivalent to 1. Therefore, instead of amplifying the currents, it actually attenuates the currents. It actually acts as a current buffer. ये करंट्स को करीब करीब सेम ही रखता है. सेम ही रखने का मतलब शाबाश यहां देखो it acts as a current buffer. क्योंकि IC और IB इनमें कुछ रिलेशनशिप जो है that is 0.95 to 0.98. Therefore it acts as a current buffer and instead of amplifying it attenuates the currents. ठीक है कि नहीं? Okay. This was the current gain. Then we define one more thing which is called as the voltage gain. Voltage gain is represented by AV. It will be शाबाश output voltage by input voltage. ठीक है. अब यहां पर आपको समझ आ जाएगा जो मैंने कंसेप्ट दिया था ट्रांजिस्टर को हम it helps in the transfer of resistances. यहां पे देख लीजिए इनपुट में कितनी रेजिस्टेंस थी 20 to 100 ohm. आउटपुट में कितनी रेजिस्टेंस थी 1 मेगा ओम. देयरफॉर यहां पर आप देख रहे हैं आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है. देयरफॉर जब आप इस AV को देखें इसका वैल्यू क्या आएगा? आउटपुट करंट आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट करंट इनपुट रेजिस्टेंस. ठीक. लेकिन ये चीज ये तो करीब 1 है ना. दे आर एक्चुअली सेम. अभी मैंने कहा पिछली बार मैंने कहा करंट सेम रह रही है. ठीक है. करंट सेम रह रही है क्योंकि कॉमन बेस मोड है. यहां पे करीब जो एटेन्युएशन है दैट इज 0.95 टू 0.98. देयरफॉर यू कैन कैंसिल देम आउट और यू कैन से इट इज इक्वल टू अल्फा इनटू RG. ठीक है. Now you already know that RG output resistance 1 mega ohm, input resistance only and only 20 to 100 ohms. Therefore, this factor will be very very large, and therefore you are seeing that आपका जो AV आ जाता है AV, it comes out to be nearly 50 to 300. यानी कि आपके वोल्टेज को जो आपने इनपुट में सिग्नल दिया था, अगर आप पहले सर्किट डायग्राम को देखें जहां पे मैंने इनपुट कुछ ऐसे दिया था, इनपुट और आउटपुट में मैंने कहा था आपका आउटपुट वोल्टेज होगा. ठीक है. इनपुट और आउटपुट जो आपने इनपुट को फीड किया आप देख रहे हो आपका आउटपुट वोल्टेज 50 to 300 टाइम्स ज्यादा होगा as compared to the input voltage. Therefore, your common base mode can be used as a voltage amplifier
but it is used as a current buffer. ठीक है? And the last thing that we are left with is the power gain. Now we define last thing, that is the power gain, and power gain is represented by PG. So it will be output power by input power, PO by PI. Output power will be I square R by I square R, but this will be output, this will be input. ठीक है? और यहाँ पे देख लीजिए, this is again alpha square and this is RG. Now remember, alpha is less than 1. है कि नहीं? This is alpha is less than 1. When it is less than 1, the alpha square, it will be lesser than 1. Therefore, you will see that your power gain will be lesser than the voltage gain, and therefore it cannot be used as a power amplifier. It is only used, better to use common base mode as a voltage amplifier. Clear? ठीक है कि नहीं? And remember, जो आपका इनपुट है और जो आपका आउटपुट है, आपने इनपुट में फीड किया था ये वाला सिग्नल, आपके आउटपुट में भी आप एम्पलीफाइड सिग्नल आएगा. आपके इनपुट में ये वाला दिया था, सो जो इनपुट, लेकिन आपके आउटपुट में ये आएगा. लेकिन इनका फेज सेम होगा, यानी कि अगर यहां से पॉजिटिव हाफ आ गया, यहां से पॉजिटिव हाफ आएगा, यहां से नेगेटिव हाफ आएगा, यहां से भी. सो रिमेंबर, इन कॉमन बेस मोड द इनपुट एंड द आउटपुट आर इन फेज. ठीक है कि नहीं? So this was all about common base mode. We discussed the input characteristics, we discussed the output characteristics, and remember, common base mode is used for amplification process of the voltage, not of the current, not of the power, because it acts as a current buffer. Clear? And I hope जो concepts इसके prerequisites थे, वो early effect वगैरह, वो आपको समझ लिया होगा, और इसके साथ साथ जो लीकेज करंट्स का कंसेप्ट भी था वो भी आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक, नेक्स्ट लेक्चर इट विल बी कॉमन एमिटर मोड. थैंक यू सो मच.